So I think Sir Osama Malik is having some issues. He'll be joining us in 2 minutes. Ma'am Nisha Rao, however, will join a little late. She got into a very unfortunate event. One of the transgender was arrested today in the morning, so she had to go to the police station. But she'll be joining us shortly, and we're very excited to have her. So I'll be starting with a general introduction of the session. Even though it's very self-explanatory, the inclusivity of gender minorities in legal field, but the problem of gender inequality among lawyers has been a subject of recent and ongoing research, study, and action. It is widely observed that despite many efforts, gender inclusivity still remains absent in this profession, especially in positions of leadership and power. The same phenomena is reflected across the globe, and today we are here to address this issue and go more on the deeper level and see what are the feasible solutions that we can include gender minorities in the legal field. Um, till now we have our very two respected guest, जिनकी मैं personally बहुत fan हूँ, जिनसे मैं बहुत inspired हुई हूँ, and I'm sure काफी ज़्यादा legal field में जितनी भी हमारी women counterparts हैं, these both women have shown immense power, immense resistance, immense, I mean, they have shown us what women can do in legal field especially. So without any further delay, I would like to introduce Ma'am Imbreen Qureshi. Ma'am Imbreen Qureshi is an experienced litigator with an 11-year history of working in the legal service industry. Skilled in legal writing, company matters, public interest litigation, constitutional law, family property, related litigation, and legal advice. She has done almost everything. Strong business development professionals with a bar at law focused on corporate and employment law from Lincoln's Inn. Ma'am Imbreen is a chairperson at Human Rights and Women Empowerment Lahore High Court Bar Association. The next guest we have is none other than Barrister Khatija Siddiqui. She's an advocate and a human rights activist. She holds an LLB honors from the University of London and bar at law from the City Law School. She has been a member of the Honorable Society of Lincoln's Inn and a student ambassador at City University of London. Thank you very much to both of the guests joining us today in this panel. We're delighted to have you here. Yes. Can you hear me now? Thank you so much for such a nice introduction. Thank you so much for joining us. I think it's 12:53, so we should jump on the first question, and Sir Osama Malik and Ma'am Nisha Rao can jump in later. So my first question is that do gender minorities advance as rapidly as their male counterparts in the career paths in law? If not, then what are some of the barriers to this? It's a very informal session, so either of you can jump in on the question first and then the other person can add on to it. Ma'am Imbreen, I think you were saying something, but your mic is muted. You have to unmute it, please. Hanji. Khatija, do you want to answer that first or should I? I should go ahead. Acha. I think for me, what I see is I see a lot of girls actually joining in and wanting to do law. There is a huge change since the past 10, 15 years. If you see before that, the amount of girls actually wanting to pursue law as a degree were even, they were just very minute. So one thing that we need to actually acknowledge and actually appreciate that, yes, in Pakistan, finally, we have a place where we can actually go comfortably and study law. Now, the problem doesn't end there. The problem actually starts after you've done your law degree, and that's actually getting into a law firm, getting into the legal practice, the litigation. And one of the main problems that women or in general, if you just want to talk about, those who belong to the gender minorities, their main issue is that chambers are one, because majority of them are run by men. There is some sort of apprehension once a woman wants to show her interest into litigation. Most of the time, a lot of time girls come up to me and they also say that one of the first questions they do ask is when are you planning to get married, or are you married, do you have children?
Now, all these look like, unreasonable and, very personal questions. But the truth is that they do actually affect your litigation and your practice, and that is why they're asked. But to discriminate on basis of these issues is unfair, and we as a whole need to actually highlight that, and we need to actually not only highlight that, make sure that those who are head of chambers, they actually accommodate women. So this is one of the things that I would probably want to highlight at the start of the session, that this is the first thing that a woman is going to feel once she has done her LLB and then wants to start practicing. The chambers are led by male senior lawyers. Their issue being that taking them lightly and not taking them seriously because of the other responsibilities that we have as women as compared to the men have. Yeah, I think that's very valuable that you said, because we see a lot of our male counterparts in executive positions in the legal field, and asking questions such as, when are you getting married, or are you married, or are you planning a family life? I think these are very personal and totally irrelevant to your legal capability of doing things, right? I would really like to check on Ma'am Barrister Khatija Siddiqui if she would like to add something to it. Ma'am, you have to unmute yourself. Your mic is muted. I'm sorry. Hello. Yes, we have Sir Osama Malik. Thank you very much, sir, for joining. We are actually jumping on with our first question. Before that, I would really like to introduce Sir Osama Malik, even though he really needs no introduction. But Sir Osama Malik is an advocate of High Court and a human rights activist. He holds an LLB honors from the University of London and an LLM in International Development Law and Human Rights from the University of Warwick. He has also worked extensively on preservation of freedom of expression in the country, and has drafted amendments to laws which marginalize religious minorities in Pakistan. And I think he is a very valuable addition to this panel. Thank you very much, sir, for joining. Thank you for having me. We are actually taking our first question, which is that, do gender minorities advance as rapidly as our male counterparts in the legal field? If not, then what are some of the restrictions? We are checking up on Barrister Khatija Siddiqui. After that, we'll jump on your opinion, if that's okay. Okay. Thank you very much. All right. Okay, so I think I'll carry on from what Barrister Breen just said. It is actually a dilemma that we live in a society where, which is very, very male dominant and male centric, and that trickles down in the legal fraternity as well. So I think it would be unfair to completely blame the legal fraternity about it. So the critique does not start with individuals. It actually goes down and bends down to the narrative of the society, where how women are treated in the society, and the way they're treated in the legal fraternity is not any different. So I feel that yes, what Barrister Breen correctly pointed out, women are treated less seriously in the fraternity, and especially they're made to believe, basically it's so deeply embedded that they have to choose between a married life, successful married life, and a successful career in the legal field. तो उनसे ये सवालात जो भी बड़े उन्होंने कहा पूछे जाते हैं इंटरव्यू के वक्त, या आर यू मैरिड, डू यू हैव किड्स, इस तरह के सवालात क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि अगर शादी हुई भी है तो जी शी वोंट बी एबल टू गिव टाइम, और वो काम पे तवज्जो नहीं देगी या सीरियसली नहीं लेगी. तो ये जो नैरेटिव है इसको बदलने की जरूरत है, एंड आई थिंक इसमें हमारा जो सोसाइटी है, लीगल फ्रेटर्निटी की सोसाइटी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. हमारे बार काउंसिल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. अभी वेरी रिसेंटली हमारे जो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, उसी में देख लें एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारी फीमेल की जो कि इलेक्ट हुई हो. आउट ऑफ द कैंडिडेट्स 15-16 कैंडिडेट जितने भी इलेक्ट हुए, नॉट अ सिंगल फीमेल कैंडिडेट. तो इसी से हमें पता लग जाता है कि हमारी कितना बड़ा गैप है फीमेल्स का, जो कि एक जेंडर डिस्पैरिटी है जिसको हम कहते हैं
एक्सेप्टेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि जो फीमेल्स हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल इन कमिंग फॉरवर्ड, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन कमिंग टू कोर्ट. व्हाई आर दे नॉट कंफर्टेबल? बिकॉज आई डोंट थिंक men will ever understand what a female has to go through when she enters into session court where there are men all around you and they'll give you so hideous stares that you will be forced to look at yourself and straighten up yourself कि जी मैं ठीक लग रही हूँ, मेरे में कोई ऐसी खराबी है कि जी मर्द हजरात सारे मेल लॉयर्स आपको इतना अनकंफर्टेबल कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू गो थ्रू एवरी डे. अगर हम लोअर कोर्ट्स की बात कर लें, सेशन कोर्ट से लेके मैजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट में इट्स अ बिट बेटर बिकॉज वहां का डेकोरम है विच इज अ बिट मोर एक्सेप्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा है. लेकिन लोअर कोर्ट्स में इट्स टेरेबल फॉर वुमेन. एंड आई थिंक it's also because we don't go to courts, we don't take a stand, हम अपने आप को आगे नहीं लेकर आते just because of the fear of being harassed and being treated differently and unfairly. तो I think ये बहुत बड़ा जो है एक मसला है which needs to be dealt in a very different and in a very sensitized approach. Legal. I think there's really something interesting that you said कि जो हमारी legal field में है gender disparity वो actually translate होती है जो हमारी society में भी है. तो वो जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज लिटरली ट्रांसलेटेड इन द लीगल फील्ड एज वेल. और आपने दूसरा भी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि हमें लोअर कोर्ट्स में हम ज़्यादा नहीं देखते वुमेन रिप्रेजेंटेशन, या जाते भी हैं तो बहुत लड़कियां ज़्यादा आगे नहीं आती, घबराई होती हैं. बिकॉज honestly I've seen a lot of women in my family and I think myself when I think about going to lower courts, वो एक sense of fear होता है आप में, you have to take a male counterpart with you. और we also know कि lower courts में practices इतनी important है हमें आगे shape up करने के लिए हमारी legal skills and our practice in legal field. So thank you very much for these very much notable points. I would like to check on with Sir Sama Malik if you would like to add something to this question. Can you repeat the question, please? Yeah, so the question was that in our legal field, we often see that the gender minorities are not at such successful positions as our male counterparts. So what are Okay. I get the question. That's a very pertinent question, and the fact that we are discussing it right now shows that we are going in the right direction. You see, if you go back like 3-4 decades when I used to work, I started my practice with Iqzaz, and then I worked with Miss Asma Jahangir for the longest time. So Bibi Asma used to tell me her stories when she entered the legal profession. So what kind of slurs people hurled at her, और उनको कहते थे कि जाओ बीबी जाके हांडी रोटी करो और किधर आ गई कोर्ट में. But that was something so out of ordinary कि एक औरत जाके उस वक्त back in the 70s या early 80s काम कर रही है कोर्ट में और मर्दों के साथ बैठ रही है और सब कुछ कर रही है. That was kind of a stigma. ठीक है, that was not something to be proud of at that time. लेकिन अब हम देखते हैं after like 30-40 years we are discussing it. There's a lot of discussion going on especially on this topic. और बल्कि मैं देखता भी हूँ अपनी मेरे जूनियर्स हैं, कुछ मेरी कॉलीग्स हैं, मेरी सीनियर्स हैं, आई सी देम काफी ज्यादा मैं उन्हें देखता हूँ कोर्ट्स में. दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर आर्ग्यूइंग, और लोअर कोर्ट्स में वो जाती हैं. So I think the situation is improving, but the gender disparity that you're talking about is still there. It's a huge gap. आप देख लें कि there has been not even a single Supreme Court judge, a female Supreme Court judge अभी तक in the 73 years of our history. और अभी तक कोई भी member पाकिस्तान बार काउंसिल भी खातून नहीं बनी. और आप अगर ओवरऑल जुडिशरी का हमारा सुपीरियर जुडिशरी का रेशियो निकाल के देखें तो उसमें से मेरे ख्याल से आउट ऑफ 100 एंड कुछ जजेस सारी हाई कोर्ट्स की मिला के मेरे ख्याल से 4 मेरे जजेस होंगी, जो कि 4 या 5 फीमेल जजेस जो कि अपॉइंट हुई होंगी. तो दिस डिस्पैरिटी इज देयर. बट येट अगेन कि कल अभी इलेक्शन थे पंजाब बार के और लाहौर सीट से और इस्लामाबाद से भी. इवन लाहौर और इस्लामाबाद आर अर्बन सेंटर्स, और यहाँ से आप देख लें कि यहाँ से अगर ये सूरत हाल है कि नॉट इवन अ सिंगल फीमेल मेंबर हैज बीन इलेक्टेड, तो अब छोटे शहरों का तो भूल ही जाए ना उधर क्या हालात होंगे. तो इस बारे में लेकिन मेरी भी थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं कि मैं कल देख रहा था पोलिंग डे पे मुझे कोई 0.5% खवातीन जो हैं वो वोट डालती हुई नजर आई. ठीक है, द रेशियो वाज रियली लेस. जब तक आप खुद उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक यू आर नॉट गोइंग टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, तब तक ऑब्वियसली चेंज नहीं आएगी. कोई चेंज कहाँ से आएगी? चेंज तभी आएगी, चेंज आएगी पावर कॉरिडोर से, और पावर कॉरिडोर में तब चेंज आएगी व्हेन यू आर पार्ट ऑफ इट.
बाहर से बैठ के चेंज नहीं आएगी। जब एक खातून जाके मेंबर पंजाब बार बनती, कल को मेंबर पाकिस्तान बार इलेक्ट होती है, तभी वो जाके खातून की आवाज बन सकती है, खवातीन की आवाज बन सकती है और कह सकती है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ पे मर्द का राइट नहीं है, यहाँ पे हमारा भी राइट है, ठीक है। बल्कि मेरा तो, मुझे कभी ऐसा सिचुएशन में मौका मिला तो मेरा तो आई थिंक कि देयर नीड्स टू बी अ रिजर्व सीट फॉर द कुछ अरसे के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 years, जब तक फीमेल रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं आती बार काउंसिल्स में और आपकी बार एसोसिएशन में। देयर मस्ट बी फीमेल कोटा, जैसे रिजर्व सीट्स होती हैं हमारी नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, हमारे सेनेट में, तो व्हाई नॉट द बार काउंसिल्स? वो कहीं से ऊपर है। देयर नीड्स टू बी अ रिजर्व कोटा, जो कि 1-2 सीट्स हो खवातीन के लिए, खवातीन उसी में से इलेक्ट होके आए, क्योंकि जब when they have to compete with their male counterparts, तो the competition is really tough। आप मतलब इमेजिन कर सकती हैं कि खातून के लिए वैसे ही जाके कैंपेन करना, वोट मांगना, कंसिडरिंग आवर सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, काफी मुश्किल होता है। तो जब उसने एक, जिनके पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस में देयर ग्रुप्स एंड ग्रुपिंग्स होती है इतनी ज्यादा, तो उनके लिए निहायत ही मुश्किल हो जाता है। तो तब तक रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स की नहीं जा सकती जब तक उनके लिए मेरे ख्याल से एक रिजर्व कोटा हो। एक सीट रख लें, एक सीट से बेसिक स्टार्ट कर दें, लेट्स स्टार्ट समवेयर। मतलब मेरा तो हमेशा पॉइंट है लेट्स स्टार्ट समवेयर। तो उसके बाद बल्कि अपनी हद तक हमने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कमेटी बनाई। आई एम स्टिल द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स कमेटी। और जब वो पहली बार बनी थी 2018 में, हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी, तो उसमें 13 में से आउट ऑफ 13 7 वर फीमेल, माय फीमेल कॉलीग्स। तो वहां से फिर एक तरह से कमेटीज में भी आना शुरू हुई खवातीन। लेकिन तब तक इलेक्टेड पोस्ट पे जाना उनके लिए ऑब्वियसली मुश्किल हो सकता है जब तक उनके लिए कुछ स्पेशल आप उनको कोटा ना दें या कुछ ना दें, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है। बीबी आसमा की एग्जांपल है, शी इज स्टिल द ओनली वुमन जो कि अल्लाह में जन्नत नसीब करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी, खातून। और वो कैसे बनी, कितनी उनको मुश्किल हुई, कितनी उनको मुखालफत करनी पड़ी, कितने उनके पैम्फलेट्स बांटे गए उनके खिलाफ, वो उनकी फैमिली जानती है, उनके करीबी लोग जानते हैं कि क्या क्या नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। और इसमें हमारी जो खवातीन लॉयर्स हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के कि अब इतनी यंग लड़कियां जो हैं आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा उन्हें होता है कि जी कोर्ट नहीं जाना, मतलब अगर 10 मेरी दोस्तें होंगी तो उसमें से 1-2 को शौक होगा कि हम कोर्ट जाएं, बाकी कहेंगी कि नहीं जी हम ऑफिस वर्क ही करेंगे, हमें कॉर्पोरेट काम चाहिए, ट्रांजैक्शनल काम चाहिए। तो वी हैव टू वेरी excellent examples sitting with us, खतीजा और अमरीन। दोनों दे आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, दोनों दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो इस तरह की और भी जब तक नहीं आएंगी तब तक मेरे ख्याल से सिचुएशन ऐसी रहेगी और अंदर से चेंज लानी पड़ेगी। Yes, I think that is very much true and very much valuable कि आप जब तक खुद नहीं जाएंगे, जब तक आप खुद नहीं बाउंड्रीज पुश करेंगे, तब तक आपको जगह नहीं मिलेगी लीगल फील्ड में, स्पेशली फॉर अ वुमन। तो आपको खुद जाकर अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। Now I would like to give floor to my co-moderator Umar Ranja, who will be asking other questions. Umar, you can take the floor. Thank you, Rizal. Assalamu alaikum first. My name is Umar Ranja and I will be moderating your session. Sir, जिस तरह आपने mention अभी किया है minorities के बारे में कि women are being less represented. I would like to add कि जहाँ ख़वातीन आती हैं वहाँ there is a major chunk of other gender minorities as well, which includes the transgender community and non-binary people. How do you think can we make the legal system more inclusive of these non-binary people? And we need to ensure that उनकी भी एक representation एक हद तक हो रही है। देखें उमर, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई मस्ट से। लेकिन बात ये है कि ट्रांसजेंडर्स की जहाँ तक आपने बात की, अभी मैं पिछले दिनों आई वाज रीडिंग समवेयर कि फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर लॉयर जो है वो सम सिटी ऑफ पाकिस्तान, आई फॉरगॉट द नेम, वहाँ पे आई। तो जब तक कहाँ पे Nisha Rao is the हाँ female- Nisha exactly is she with us? I think I saw her on the poster. Has she joined us? She's going to be here soon. अच्छा। तो देखो ना, यहाँ से चेंज आना शुरू होती है, ठीक है। तो वहां से वो पहली बार आई और ऐसे ऐसा करके और भी उनकी तरह के आएंगे। पहले तो देखिए ना, लीगल प्रोफेशन की आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप देखें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हमारी कितनी डिस्पैरिटी है सोसाइटी में हमारी, नॉट जस्ट इन द लीगल प्रोफेशन। सोसाइटी में आप देख ले, इनका ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट आया हुआ है और उसको 2 साल हो गए हैं, और वो एक्ट जो है इतने ज्यादा राइट्स देता है इन ट्रांसजेंडर्स को, लेकिन इट्स ऑल ऑन पेपर, ठीक है। आई वर्क विद सम ऑफ द ट्रांसजेंडर्स और उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अभी फुली इम्प्लीमेंट हुई हो। तो जब तक हम सोसाइटी में चेंज नहीं लाएंगे, क्योंकि जो जिसने भी लीगल प्रोफेशन में आना है उसने हमारी सोसाइटी से उठ के आना है ना, उसने कि बाहर से तो उठ के आना नहीं। तो जब तक हम अपनी सोसाइटी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से दूसरे जेंडर्स के लिए भी,
तब तक बात नहीं बनेगी। और यहाँ पे अपने माइनॉरिटीज की बात की, मैं यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज का भी जिक्र करना चाहूंगा, वो भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और रिलीजियस माइनॉरिटीज के तनासुर में अगर आप देखें, ना उनकी कोई बेंच में रिप्रेजेंटेशन है, ना उनकी कोई बार में रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह आई थिंक जिस जो फीमेल, जैसे मैंने कोटा की बात की, रिजर्व सीट्स होनी चाहिए बार काउंसिल में, उसी तरह रिलीजियस माइनॉरिटीज की भी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उन्हें मौका नहीं दोगे, जब तक आप उनके बैरियर्स नहीं हटाओगे उनके सामने से, वो नई बात होगी। लेकिन बैरियर्स जो हैं, येट अगेन उमर बड़ी पर्टिनेंट बात है कि बैरियर्स खुद नहीं हटते, बैरियर्स हटाने पड़ते हैं। और वो कैसे हटाने पड़ते हैं? वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, अपना नेटवर्क बना के, अपनी आवाज जहाँ पे वेयर इट मैटर्स वहां तक पहुंचा के हटते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक आप खुद नहीं वहां पे बैठे होगे, आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते कि वो आके जी किसी दूसरे का आप काम करेगा। मतलब हम जैसा तो कोई आ जाएगा, लेकिन जो पहले से बड़े बड़े बुर्ज बैठे हुए हैं वहां पे इन पोजीशंस ऑफ पावर, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि माइनॉरिटीज, जेंडर माइनॉरिटीज हो जाएं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो जाएं, या ट्रांसजेंडर्स की जैसे आपने बात की वो हो जाएं, वो इस तरह की पोजीशन में आए, क्योंकि वो उन्होंने अपना एक क्लब बनाया हुआ है। तो आपको उस क्लब का पार्ट बनना पड़ेगा टू ब्रिंग अबाउट चेंज। Thank you, sir. Whoever wants to go first, please go ahead. Acha ji, should I? Yeah. As regards to your second question, very nicely, Osama has summed up exactly what needs to be done, and I think I'll highlight the fact that जो हमारी transgender community है, उनके लिए सिर्फ ये नहीं है कि how they should be able to enter into the legal fraternity, उनके लिए ये भी बड़ा जरूरी है कि उनके लिए जो legal education के अलावा जो primary education है, secondary education है, वो लेना भी बहुत बड़ा hurdle है। Despite the fact that 2018 में आपके पास ये transgender persons rights act आया था, हमने ऐसा क्योंकि कुछ किया नहीं है, there are things and there are steps that we need to take, not only by we, I mean the legal fraternity, but also the government. Because अगर आप इनको free education नहीं provide करेंगे और उनको scholarships नहीं देंगे और उनकी health और उनकी बाकी maintenance के लिए actually financially इनको नहीं support करेंगे, तो उनका जो change लाना है वो बहुत देर बाद आएगा। मेरली एक एक्ट बनाने से आप उनको वो सारे राइट्स नहीं दे सकते। उसके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको काफी चीज स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। एंड आई वुड गो दैट इज व्हाई आई थिंक सिर्फ लीगल एजुकेशन के अलावा आपने उनकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है, आपने उसके ऊपर भी जोर लेना है। और हमारे जो बार काउंसिल्स हैं और people who are in power, what they can do is they can actually provide them with free scholarships so they can actually pursue LLB. Ab Nisha ka jo story hai, that's very inspiring, that she was working and making sure that she was able to get money to buy books. Now, not everybody should, I mean, not everybody is that inspirational. That is a hurdle to just buy books and to be able to pursue a career. So उन लोगों के लिए हमें चाहिए कि हम एक पाथवे क्रिएट कर दें कि उनके लिए लीगल एजुकेशन लेना, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को एक स्कॉलरशिप्स का भी कोटा देना चाहिए टू आवर जेंडर माइनॉरिटीज, टू इंश्योर कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी हो एज एन इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू परस्यू देयर ड्रीम्स. So this is something that we could actually do. बिल्कुल सही कह रही हैं बैरिस्टर अमरीन. आई थिंक थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी and then you can move on to the next question. About the rights of transgender, especially अभी जब बैरिस्टर अमरीन was highlighting this very important issue, it took me back to Julie's case. And when Julie, the transgender in Islamabad, when she was behind bars, she was kept in an all-male prison. So imagine she calls herself a female transgender, and imagine how she must have been treated in an all-male prison. तो ये कुछ बड़े issues हैं जो कि हम बड़ा easily इनको casually ले लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा even she was so upset herself कि मुझे जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ वो तो मैं बता भी नहीं सकती. तो इस तरह के जो हमारे cases सामने आते हैं, इसके बावजूद भी अगर इस तरह के acts पे implementation नहीं होती, तो ये हमारी बहुत जो है ना, I think it's a failure on our part कि हम इसको अभी तक implement नहीं करा पाए 2 साल पहले के act को.
I'm hoping that better days are soon to come. And another thing, हमारे जो lawyers हैं, especially from the minority group, from the Christian community, I have seen them literally, trying to come forward, but not being able to, because they have to work more harder to make some place in the fraternity. Even the male lawyers, मैंने देखा उनको, वो अपने नाम के आगे एक मुसलमान नाम भी लगाते हैं, ताकि हमारे खुद एक हमारी फर्म में एक क्रिश्चियन हमारे एसोसिएट हैं, वो अपने नाम के साथ एक मुसलमान नाम जरूर लगाएंगे कि जी उनकी थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी का रेशियो जो है वो बढ़ जाए. तो इस तरह के इश्यूज पे हम जो है ना अभी पीछे हैं, बैकवर्ड है. इसमें हमें स्पेशली जो है ना वो काम करना पड़ेगा, किस तरह के ये इश्यूज को सीरियसली लें और इन लोगों की जो एक्सेप्टेंस है उनको बढ़ाएं, और इनका representation in the bar, in the bench, it should obviously increase. I think azan ho rahi hai, so we'll probably take a short break. It was previously mentioned in the meeting that senior roles में हमारा जो है representation बहुत कम है, लेकिन the position is somewhat different when it comes to lower roles. Junior roles हैं, if you see the judiciary, काफ़ी representation एक हद तक है ख़वातीन की, और law firms में भी associates level पे ख़वातीन appointed हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद we have some structural issues such as law firms में co-working spaces अलहदा बनी हुई और ख़वातीन के लिए और आदमियों के लिए, like women are given extra spaces, they can't really have the conversations with their male counterparts in the firms, and restrictive work timings such as ख़वातीन के जो work timings हैं वो जल्दी होते हैं, usually उनको call off कर लेते हैं कि आप अब घर जाएं. So what do you think in your opinion are the solutions to this infrastructural issue? क्योंकि eventually if we see all these infrastructural issues, they're putting the career at a disadvantage for women, and eventually ये एक gender segregation और जो gender discrimination है ये perpetuate करता है. So what are your thoughts on this question? Is this for me or Osama? Anyone can go ahead, please. Amreen, please. Okay. अच्छा देखें, पहली बात ये है कि आप ये जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है पर्सनली, वो एक somehow sadly unfortunately एक बड़ा defeatist attitude आ गया, where we actually have started believing that because we are women, practical life हमारे लिए मुश्किल होगा और हम तो harass होंगे. And I'm sorry that I'm saying this is because we need to step up and we need to actually go out there and actually first see के whether what is our potential. अगर हमारे में वो डर अगर बैठ जाता है और हम अगर अपने आप को और बाकियों में वो डर बैठा देंगे तो कोई भी आगे खड़ा नहीं होगा. किसी एक को I mean कि अभी तो बहुत चीजें, I mean when I started off back in 2006 and 2000, you would hardly see anybody, even if ये Osama is talking about Madam Asma Jhangi, she started in the 70s. I'm saying even 2000s, late 2000s, 2007, 2008, even then the situation was not any different because there was hardly anybody. So things have changed. And secondly, as regards to कि chambers में क्योंकि seniors होते हैं and there is segregation, मुझे आप क्यों जाते हैं law firm में? क्या चीजें हैं जो आपके स्कूल में आपको नहीं सिखाई जाती? Which is आपके practically आपने केस कैसे लड़ना है? I agree कि हमारी बार में representation नहीं है, हमारी judiciary में representation नहीं है. मेरा question ये है कि हमारी कितनी females हैं और कितने transgenders, चलो we have the first one, so कितनी females हैं जो आपको केस उनको लड़ना आता है, केस उनको सीखना होगा, how to fight a case in order to be in a position to get into the judiciary, I think, and at the bar, because the men have the edge. The edge is that they know how to file a case, they know how to argue a case, they know how to draft a case, they also know how to speak to a client. Aapka client will be apprehensive because you're a woman, because he thinks that a man would be probably able to represent his case better. Why is that? So ये चीजें जो हैं ये सबसे बड़ा hurdle है, और इसके लिए सबसे पहले जो चीज हमें highlight करनी चाहिए in this session is the fact कि हमें apart from what we learn in our LLBs, may that be Punjab University or
कोई भी लोकल LLB as well as the external, हमें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाए जाते, हमें नहीं बताया जाता केस कैसे फाइल करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है, उसको प्लीड कैसे करना है। और अगर हमारे पास ये चीजें आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ जाएगा कि हम लोग जो है एक अदालत में जाके अपना केस लड़ सकें। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू at school levels. Schools should start their legal skills sessions. They need to ensure कि भाई ये चीजें properly हो, from filing to advocacy, cross examination, examination in chief, ये सारा plus bar councils को एक special एक sessions रखने चाहिए औरतों के लिए in order to ensure के ये एक once that is done, I think then getting into a chamber is going to, I think all of this, once you're trained, once you're fully trained, that will give you the edge, that will give you the confidence in order to be able to proceed further. That is the one thing that is lacking, and that is something that we really need to work on. Ms. Khadija, you're muted. Can you please unmute? I will just a second. Yeah. Okay. So I would add to what Barrister Ambreen. Can you hear me now? Yes, please go ahead. All right. Okay. So I think she pointed out something that there should be training sessions for female lawyers when they enter into the profession. I think this issue, it is very pertinent with regards to male lawyers as well, because both genders, they face the same issues when both of them enter into the fraternity. तो मेरे ख्याल है ये बड़ा important एक issue है, filing का, case presentation का, examination in chief, cross examination, जितने भी legal skills हैं, drafting के, ये सारे initially हमें नहीं आते होते because हमारी degrees में हमें ये नहीं कराए जाते, especially the external program में हमें नहीं कराए जाते. तो ये हमें it's important for both genders, not only for females. लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि when females start working in chambers or in firms, they face a lot of hostility, and which is why they're not comfortable in going for court work, and they're also sometimes made to believe that they are made for chamber work and they are not made for litigation, they're not made for court work. I've seen women, I've heard women telling me stories about what they had to face in their firms and in their chambers and how male dominated their chambers were. So much so that they were forced to leave the chamber, and they were forced to, step out of the domain of the legal fraternity, and they said that it is better that we opt for teaching, or we go into journalism, or we even change our career pathway. तो मतलब ये असल में एक बड़ा वैलिड इशू है कि जहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी इतनी कम है, जहाँ पर फीमेल्स को सिर्फ ऑफिस वर्क और चेंबर वर्क के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो केस प्रिपेयर करेंगी और जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो जाके प्रेजेंट करेंगे बिकॉज दे आर बेटर एट इट. व्हाई आर दे बेटर एट इट? बिकॉज दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनको ज्यादा कोर्ट में फेस वैल्यू उनकी ज्यादा दिखाई जाती है, उनको समझा जाता है, ज्यादा सीरियसली लिया जाता है. मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, जो फीमेल लॉयर्स हैं जाके जो प्रैक्टिस करती हैं, मेल लॉयर्स में एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, एक बड़ा नेगेटिव स्टीरियोटाइप है कि अगर एक खातून फीमेल लॉयर सक्सेसफुल हो रही है तो दैट्स बिकॉज वो अपनी फेस वैल्यू यूज कर रही है, वो लड़की है, उसको जज वैसे ही एम्पथाइज कर रहा है, वो सिंपैथेटिक है उसकी तरफ, इसीलिए वो सक्सेसफुल है. नॉट बिकॉज वो मेहनत करती है, वो केस प्रिपेयर करती है, वो हार्ड वर्क करती है. सिमिलरली अगर वो शी इज लैकिंग इन समथिंग और वो केस नहीं प्रेजेंट कर पाती या वो उसमें नहीं सक्सेसफुल होती तो ओ जी लड़कियां तो सीरियसली लेती नहीं है, इसीलिए उनको केसेस ही नहीं देने चाहिए. तो ये एक माइंडसेट जो है ना, ये बड़ा प्रेवलेंट है कि ये होता है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं. बीच वाली मेहनत वाली जो खातून है ना, वो उसको देखा ही नहीं जाता उस नजर से. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाएं वर्क प्लेसेस में. लीगल वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पर बहुत कम फर्म्स हैं जहाँ पर एक्चुअली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ पर ऊपर बॉसेस से लेके एसोसिएट्स तक और इंटर्नीज तक उनको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि नहीं दी जाती है. वेरी फ्रैंकली बहुत कम एसोसिएट्स जो है ना मुझे कहते हैं कि जी वी आर कंफर्टेबल वर्किंग इन चेंबर्स.
तो आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस हमारा पैनलिस्ट भी हैं बल्कि जस्टिस नासरा इकबाल, आई होप शी जॉइन्स अस सून. When I started working, when I came back from London, I had to start some hardcore litigation. तो उन्होंने मुझे कहा कि you will only start by working with Anwar Kamal. So I said, you know, I want to do criminal. Anwar Kamal is civil and corporate. She said that no matter what, you have to start with him. So when I went off to his chamber and I started working with him, I realized वाकई इतना बड़ा gap है. And the way he motivated me, the way he encouraged me into going to court and pleading and practicing, तब I realized कि ये बहुत जो है ना एक gender disparity हमारी exist करती है courts में, जो कि fill करना बड़ा जरूरी है. Especially when we go to court, we bring in acceptance. जितनी हमारी ज़्यादा court appearance होएगी, उतना हमें acceptability भी ज़्यादा होएगी, जिस पे हमें जो है ना female lawyers को इकट्ठे होके मुत्तहद होके जो है ना अपने लिए स्पेस बनानी है और ये रियलाइज कराना है, मर्दों को ये रियलाइज करना है, मेल लॉयर्स को ये रियलाइज करना है that you are our male allies. You need to build in confidence in us. हमारे ऊपर जिस तरह की I would also like to highlight something, बड़े sexist remarks हमारे fraternity में बड़े easily बोल दिए जाते हैं. इसको अगर आप condemn नहीं करेंगे ना, if you don't call them out, you're complacent. So मेरी गुजारिश होगी कि complacency ना लेकर आए इसमें. Even कल की बात है, I was in High Court for the voting. And when I went there, I was wearing a shield because it was such a crowded area. वहाँ पर इतने लोग कच्चा-कच वकील भरे हुए थे that I was, you know, trying to protect myself from COVID-19. पूरी मैंने shield आगे पहनी हुई थी. तो मुझे दूर-दूर से दिमाग से मिले थे, मैडम कोरोना इतना तो नहीं फैला हुआ, आपने क्या किया हुआ मैडम, आप कोरोना फैला रही हो. इस तरह की जब आप मेल लॉयर से इस तरह का एटीट्यूड जब आपका थ्रो किया जा रहा होता है, तो आप किस तरह डीमोटिवेट होते हो. तो ये लड़कियां जो हैं आई थिंक बेहतर जानती हैं. मेल्स शुड मेक श्योर दैट वुमेन डू नॉट हैव टू सफर एंड फियर, and because of this fear they do not, you know, stop themselves from going to court. I completely agree with the sexist part. Sexism is like deeply entrenched in our society as culture as well, and it's high time that we need to condemn that. Sir Osama, would you please give us your 2 cents on this issue, this question? Umar, the first point is कि पहली बात तो ये कि हमने law firms की बात की कि they don't have safe spaces. पहले तो मैं ये बताऊं कि a lot of law firms they don't even hire female associates. ठीक है, वो कहते हैं कि we'll go for a male associate. फीमेल एसोसिएट की ये मैं कोट अनकोट हमें रखवाली करनी पड़ेगी. ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि वो जो है वो टाइम से जा रही है, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी. उसके पेरेंट्स ने अगर हमारे पास छोड़ा है उसे, तो वो जो है उसको कोई तंग ना करे या उसको कुछ और ना करे. तो इसलिए हम जी विल प्ले सेफ. ठीक है, और हम जो है विल गो फॉर अ मेल एसोसिएट. उसके बाद जो है कुछ फर्म जो रखती भी हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द फर्म्स, बड़ी ज्यादा फर्म्स जो हैं दे प्रेफर फीमेल एसोसिएट्स. क्यों? क्योंकि फीमेल एसोसिएट्स और फीमेल कॉलीग्स जो हैं जितनी मेरी आई थिंक दैट दे आर मच मोर कॉम्पिटेंट, मच मोर हार्ड वर्किंग देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स. मतलब मैं जितना भी किया मतलब मैं एक वेला टाइप आदमी हूँ, मुझे इतना काम करने का शौक नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ फीमेल मेरी काउंटर पार्ट्स हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा अपने काम को सीरियसली लेके चलती हैं, जो कि इट्स एन एडेड एडवांटेज. लेकिन फिर भी जो है दे आर एट ए डिसएडवांटेज. क्यों? क्योंकि उन्हें उस लेवल पे आने के लिए जितना मैं काम करता हूँ, उन्हें उस लेवल पे आने के लिए मुझसे डबल काम करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि दे आर फीमेल्स. सही है. और जो फर्म्स रखती हैं ऑब्वियसली कुछ फर्म्स रखती भी हैं फीमेल एसोसिएट्स को, दे प्रेफर के, लेकिन वो फिर इसलिए रखती कि जी हमारा ऑफिस वर्क करें, क्योंकि फीमेल्स आर गुड एट रिसर्च और रिपोर्ट राइटिंग के लिए हम रख लें, रिसर्च के लिए रख लें, ड्राफ्टिंग के लिए रख लें. लेकिन कोर्ट में जब जाना है, कोर्ट में जी आप किसी आदमी को भेज देंगे, किसी अपने मेल काउंटर पार्ट को भेज देंगे, मेल जूनियर को भेज देंगे. क्यों? क्योंकि स्पेशली इन द सिविल कोर्ट्स, क्यों? क्योंकि वो जज को जो है बातें सुना सकता है, दो उसके साथ अच्छी तरह बिहेव कर सकता है, उसके साथ बदतमीजी कर सकता है इफ नीड बी. ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीजें ऑब्वियसली दीज आर स्ट्रक्चरल इश्यूज. ये कोई एक आधी फर्म की बात नहीं है, ये हमारा सिस्टम में इनरूटेड है ये चीजें. तो इनको चेंज करने के लिए ऑब्वियसली एफर्ट लगेगी, और ये एफर्ट जो है ये एवोल्यूशन के थ्रू आएगा. ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त, दिस इज पार्ट ऑफ दैट एफर्ट. ये एफर्ट हमारी कोई 2-3 बंदे सुनेंगे तो शायद कुछ चेंज आ जाए. तो मेरे ख्याल से इसमें इस तरह का कल्चर लाने की जरूरत है कि आप किसी किस्म की भी फीमेल्स के साथ डिस्पैरिटी ना की जाए. और दूसरी बात ये कि फीमेल्स को भी मैं अपनी जो हमारी फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं
उनको भी मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनको मेरी ये विनती भी होगी कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा कोर्ट्स में आए, ज्यादा से ज्यादा अपनी कोर्ट अपीयरेंस करें। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अब अमरीन जो है, खतीजा जो है, ये हाई कोर्ट आती हैं, लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो कल को अगर इनके साथ कोई सेक्सिस्ट रिमार्क पास करेगा, कुछ करेगा, तो वो 10 बार सोच के करेगा कि ये बीबी रोज यहाँ पे आती है। ठीक है, तो अगर आएगी अगली दफा तो हमारी भी ऐसी तैसी फेर। ठीक है, तो जब तक आपकी कोर्ट अपीयरेंस नहीं होगी, आप प्रॉपर जाके कोर्ट में बैठेंगे नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ हमारी और खवातीन को जो होती हैं, हमारी फीमेल कॉलीग्स, उनको जल्दी होती है, अपना केस किया और भाग गई। मैं कहता हूँ कि जैसे बीबी आसमा थी, वो जाके मर्दों के बार रूम में, पूरे मर्दों के बार रूम में अकेली जाके जानबूझ के बैठती थी। क्यों? टू क्लेम हर स्पेस। तो ये जो है, आप अपना केस करके फौरन ना भागे, आप थोड़ी देर वहां पे जाके चाय पिए, किसी 2-3 बाबों के साथ गपशप लगाएं। ठीक है, मतलब अपनी लिमिट्स में रह के ऑब्वियसली, और क्या नाम है, अपना बाकियों के साथ बात करें, इंटरेक्ट करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे आपकी प्रेजेंस होगी, तो आपकी प्रेजेंस वहां पे होना बहुत जरूरी है आई थिंक। तो इस तरह ही चेंज आएगी। जब तक आपकी प्रेजेंस नहीं होगी और बाहर बैठ के आप बातें करते रहोगे कि हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है, हमने वो तीर चला देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। when you are not part of the system, so you have to become the part of the system in any case. Thank you, sir. That I'll makes add very much one thing sense. to Yes, please. can I just add one thing to what Osama said, that because we're talking about litigation and because we're talking about court appearances, apart from, I agree exactly to what Osama has just mentioned, but I'll also like to highlight कि बारूम के अलावा ये बड़ा जरूरी है कि जो मुझे सिखाया था मेरे सीनियर्स ने, वो यही था कि आप अपने, अगर आपका केस भी नहीं लगा हुआ, अगर आपने प्रैक्टिस सीखनी है, आप किसी भी जज के अदालत में बैठ के आप उनकी प्रोसीडिंग्स देखें बाकी लॉयर्स के, उससे भी आप बहुत लर्न करते हैं एडवोकेसी स्किल्स। So that's another thing that I would also encourage, that आप अदालतों में जाएं, हाई कोर्ट में जाके आप किसी अदालत में, किसी एक जज की अदालत में बैठ के उनके जो पास जो केसेस हेयर हो रहे हैं, और उनमें उससे भी आप एक आपकी लीगल सेंस और लीगल नॉलेज जो है वो बड़ी इंक्रीज होती है। So I'll just wanted to add that to Osama's Thank you. point. We have our fourth guest here. I'll hand over to Ghazal, who will introduce Ms. Nisha Rao. Ghazal, Yeah. please. Before that, I think everybody gave some really valuable points. जिस तरह सर सामा ने कहा और फिर बैरिस्टर अमरीन ने भी कहा, बैरिस्टर खदीजा ने कहा, I think it's time that women and gender minorities start claiming public spaces, because I think it's really high time to do that. And we have our most awaited guest with us, Ma'am Nisha Rao. She is the first transgender lawyer in Pakistan. She has earned a law degree from Sindh Muslim Law School in 2018 and now fight cases for transgender community. Ma'am Nisha is working hard to lend support to her transgender community. She has remained very strong and rose above everything, and life has threw at her to fulfill her dreams. Ma'am Nisha Rao, would you like to add something? We are really honored to have you here. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनविटेशन दिया, मुझे ज्वाइन करने का मौका दिया, और मैं थोड़ा लेट हो गई थी। देखें कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, और ख्वाजा सरा को वैसे भी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, कि मैंने किस तरह स्ट्रगल किया, हमारी सोसाइटी में हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स थे और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े। लेकिन फिर भी मैंने सोसाइटी में सब कुछ वो किया जो मेरी दूसरी कम्युनिटी के लोग करते थे। मैं अपनी कम्युनिटी में आई, हमें बैगिंग करनी पड़ती है, वेडिंग डांसिंग करनी पड़ती है, बैड एक्टिविटीज़ में हमारे कुछ ट्रांसजेंडर्स होते हैं, लेकिन मैंने सारी प्रॉब्लम फेस करके मैंने लॉ की तरफ खुद को लॉ की डिग्री की तरफ लेकर आई। अब जैसा कि देखिए कि मैं एक वकील हूँ, मेरी इनरोलमेंट हुई सिटी कोर्ट में, और उसके बाद मैं कोर्ट में अपने ट्रांसजेंडर्स के केसेस लेके जाती हूँ। अगर वहाँ पर देखा जाए, जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो इतने ज़्यादा मेल्स जो लॉयर्स थे, मैं उनके बीच में खुद को बहुत अजीब सा फील कर रही थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं प्रैक्टिस कर सकूँगी, लेकिन मैंने यही सोचा कि मैंने लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं तो मैं ये काम भी करूँ, लेकिन मैं अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोर्ट रोज जाती हूँ। Umar, you can take the floor, the questions. And I think Ma'am Nisha Rao ने जो कहा है वो काफी
ज़्यादा रेलेवेंट है आज के और हमारे टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जब हम ऑफन बात करते हैं जेंडर माइनॉरिटीज़ की, ज़्यादातर हमारा दिमाग हमेशा औरतों की तरफ जाता है और उनके मसाइल की तरफ जाता है इन लीगल फील्ड, और उसमें हम सारे इग्नोर कर देते हैं कि इतना बड़ा एक चंक है, कम्युनिटी है, जिसको हम लोग सोसाइटी में भी इग्नोर कर रहे हैं, हम हर फील्ड में इग्नोर कर रहे हैं। एंड व्हेन मैम निशा राव बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर, आई थिंक काफ़ी लोगों की ये एक वो होप बनकर आई हैं कि देयर इज़ द पाथ, देयर इज़ अ वे out of all the troubles and all the atrocities they're going through. And I think she is just a phenomenal source of inspiration for everybody. Umar, would you like to take over? थैंक यू। मैं मिस निशा राव से शुरू करना चाहूँगा। पहले एक क्वेश्चन पोज किया था मैंने कि हमारा जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर एक जो जेंडर सेग्रीगेशन है उसके मद्देनजर देखते हुए मिस निशा राव, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज द फर्स्ट ट्रांस वुमन क्या ऐसी रुकावटें थीं आपके करियर प्रोग्रेशन में जिनका आपको सामना करना पड़ा, और आपने किस तरह आप दूसरी जो जेंडर माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में अक़लियतें हैं जिन्स को लेके, आप उनको कैसे मोटिवेट करती हैं कि वो इस करियर की तरफ खुद आएं? देखें कि मैं खुद की बात करती हूँ कि हमारी कम्युनिटी को कोई फंडिंग नहीं है, कोई स्टेपेंस नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या बैतुल माल। इसके अलावा कोई एनजीओज भी ऐसी नहीं है कि जो ख्वाजा सराओं को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि या तो हम वेडिंग डांसिंग करते हैं या हम रोडों पर भीख मांगते हैं। मुझे वेडिंग डांसिंग तो आती नहीं थी। 2010 में मैंने फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन करवाया तो मुझे ना तो मेरे पास आईडी कार्ड था और ना मेरे पास कोई जॉब थी, और मेरी जो तालीम थी वो मैट्रिक थी। तो मैंने क्या किया, मैंने रोडों पर भीख मांगी। मैंने समझो यहाँ तक कि मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, मैं भीख मांगती थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी सोसाइटी में और हमारी मुल्क के अंदर कोई इस तरह का हमारे लिए पैकेज नहीं है कि हम इजीली तरीके से अपनी जो हमारी एजुकेशन है हम उसको कंप्लीट कर सकें। उसके लिए भी हमें इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जब एक एक फर्द जब सिग्नल पर भीख मांग रहा होता है, अगर वो किसी को ये कहता है ना कि मैं पढ़ाई के लिए भीख मांग रहा हूँ, तो हमारी सोसाइटी वो यकीन नहीं करती। मैंने इन प्रॉब्लम से फेस किया। फिर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैं कराची यूनिवर्सिटी में मैंने IR में मास्टर किया, मुझे कंप्लीट फीसें वोचर्स पे करने थे। फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में रजिस्ट्रेशन, वोचर्स, एग्जामिनेशन फीस, मेरे लिए कोई वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी या मेरी फीस माफी का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था। जब मेरा सिंध बार में एनरोलमेंट हुई उसकी भी मैंने पूरी फीस अदा की। अब देखें कि सोसाइटी में एक तो हम थर्ड जेंडर हैं, मिनॉरिटीज में हैं, और फिर हमें सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट भी नहीं है जो एक मर्द को और एक औरत को दी जाती है, हमें वो इज्जत नहीं माशरे में दी जाती। और फिर देखें कि हमारे लिए वो सारे बैरियर्स हैं जो एक नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि यहाँ पर भाई ख्वाजा सरा को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कराची का चिड़िया जू घर है, वेडनेसडे को वहाँ पर ख्वाजा सराओं को अलाउ नहीं है। इसके अलावा सफारी पार्क है, असगरी पार्क है, ये एक पब्लिक प्लेसेस हैं। इन पर कौन काम करेंगे? इन पर हमारी लॉ फर्म्स करेंगे, हमारी कौन सी लीगल फर्म्स करेंगी, गवर्नमेंट करेगी या मिनिस्ट्री करेगी? किससे जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई हमारे लिए ये सारे जो बैरियर्स बनाए हुए हैं ये कौन करे, ये कौन खत्म करेगा? फिर इसके बाद अगर हम कोर्ट का प्रोसेस ले ले तो मेरे लिए वही प्रोसेस था जो एक नॉर्मल बच्चों के लिए होता है। जब मैं कोर्ट में जाती हूँ, मेल्स वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, कोई लोग मुझे देखकर हंस रहे होते हैं, कोई पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे होते हैं, मैं वो बयान नहीं कर सकती क्यों उन सारी प्रॉब्लम से मुझे रोज गुजरना पड़ता है और मैंने रोज जाना होता है। समझ के अभी मुझे आदत पड़ गई है रोज लोगों की बातें सुनना, रोज लोगों का मुझे नोटिस करना। मुझे ऐसे फील होता है बाज दफा कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरी शक्ल अजीब बनाई है या मेरी ड्रेसिंग इस तरह की है या मेरा फेस पता नहीं क्या लगा हुआ है जो लोग मुझे इतनी अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। देखें कि मैंने अपना जिंदगी का जो मकसद था ना वो मैंने अपना कंप्लीट किया, लेकिन सोसाइटी ने और के लोगों ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उन्हीं के सहारे पे मुझे लगता है कि आई थिंक कि मैं कोर्ट जाता हूँ। आपको मिस निशा आपको दाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ा है सोसाइटी का, और हम सब जो यहाँ मौजूद हैं हम सब आपके साथ खड़े हैं इस कॉज के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वक्त भी आएगा जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हद तक महदूद होगी, पूरी होगी। On to the next question. I have a question regarding making laws more dynamic.
So when and how are we going to make laws more dynamic and more gender neutral? इंडिया में 2012 में गैंग रेप केस आया था निर्भया का. उसके बाद the definition of rape was amended by the Criminal Amendment Act 2012. So my question to the entire panel is that when are we going to progress forward without witnessing and suffering from these serious crimes? कोई ये भी मुझसे please पूछा जा गया. सकता है. Anyone among you? I think कोई भी आप में से जा सकता है. should I go first? I think we have progressed. It's not like we haven't. If you see from 2006, जहाँ पे आपके women protection bill से शुरू होता है, there have been, you know, a lot of laws that have been made in order to ensure that they cater to, you know, gender minorities. मगर आपका जो इंडिया का केस है उसमें दो चीजें जो थी वो हाईलाइट की गई थी, which was one कि आपकी जो मेजॉरिटी है आपकी केस का जो प्रोसीजर है that is it takes too long to get to a decision. और जो सेकंड चीज इस केस में हाईलाइट की गई थी वो ये थी कि आपके जो पुलिस है that's not trained. हमारे पास इस साल there are two major cases which I feel जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एज वेल एज मोस्टली यहाँ पे नेशनल लेवल पे एक बहुत ज़्यादा आपके पास एक क्रिएट हो गया था कि भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, which was the motorway incident and now it was the Arzu incident. अब इसमें हमारे पास you know उससे पहले obviously we had the Zainab case and you know child abuse is something that people are heavily working on. There is law अभी इसके ऊपर पास हो रहा है. सो ये सारी चीजें इसके ऊपर काम जरूर हो रहा है और पाकिस्तान में अभी जो नई ये जो ऑर्डिनेंस आ रही है उस पे उन्होंने काम किया है और इस पे इन्होंने स्पीडी यू नो लिटिगेशन प्रोसेस को भी हाईलाइट किया कि भाई ये इन टाइप के केसेस में आपने एक तो सेपरेट कोर्ट्स करनी है और इसको बड़ा स्पीडीली करना है. मगर एक चीज और जो हमें इस चीज में इन केसेस से वो हाईलाइट होती है वो होती है फोर्स कन्वर्जेंस, जो हम एक्चुअली बात नहीं करते अबाउट दिस. वहां पे आई थिंक कि बड़ा जरूरी है in order to change the dynamics you know of certain things is the fact that we need to also talk about you know forced conversions, why do they happen, and to make them you know either kids especially जो बच्चे under 18 age के होते हैं उनके लिए इसको illegal कर दिया जाए. So we'll be able to not only help our minorities but also ensure that जो आपके child abuse और आपके जो rape cases हैं वो significantly cater to हो जाते हैं you know if you actually work on not only child abuse laws but also forced conversion. So work is going on, magar implementing it, training the police, training the lower judiciary of how to handle these cases, ensuring that justice is given within a time frame 6 months 3 months before it is too late is another uphill task. और वो जो है उसको एक्नॉलेज करना और उसके ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है apart from just making laws. Barrister Khatija, Sir Osama, please, if you would like to share something. Khatija, please. All right, okay, so I'll go ahead first. इसमें very rightly pointed out, इसमें हमारे laws are evolving, हमारे new laws are coming, anti-rape ordinance जो है वो आ रही है और काफी ज़्यादा काम जो है वो ongoing है, especially during this tenure इसके ऊपर काम हो रहा है because of the rising cases. क्योंकि हमें जब तक social media pressure नहीं आता, जब तक कोई ऐसा serious case नहीं हो जाता, हम लोग भी बड़े खामोश रहते हैं और हम लोग भी चुप रहते हैं. लेकिन ये हो रहा है काम and I think लॉज बनने के बाद बड़ा जरूरी चीज होती है कि लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होती जब अवेयरनेस नहीं होती. हमारा एक गालिबन 2018 में एक्ट आया था विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, वो उसकी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट करता भी है. इवन हम लॉयर्स को भी नहीं पता होता. मैं भी हर दफा जब रिसर्च करती हूँ तो कोई ना कोई नई चीज निकलती है. इतना वास्ट है हमारा लॉज लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि ये एग्जिस्ट करते हैं, हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे होते. तो आई थिंक जहां पर हम नेगेटिव बात करते हैं, हमारे लूप होल्स की बात करते हैं, पुलिस प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, वहां पर हमें हर किसी को अपना अपना रोल
सेपरेटली अदा करना है। एंड आई थिंक एक ये बड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट है, एक सबकी इकट्ठे एफर्ट है जो कि हमारी सोसाइटी को इन द राइट डायरेक्शन लेकर जा सकती है और लेकर जाएगी। एंड आई थिंक हम स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, बस हमें थोड़ी सी एफर्ट्स की जरूरत है और इकट्ठे एफर्ट्स करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह अभी बैरिस्टर अमरीन ने बात की है, स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स होंगे उस कोर्ट में जो कि स्पेशली ट्रेंड होंगे ऐसे केसेस को, रेप के केसेस को डील करने में, जिसकी आई थिंक विच इज द नीड ऑफ द आवर। अब अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर हम जो है ना काफी पीछे रह जाएंगे। तो वी रियली नीड टू पुल अप आवर सॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग कलेक्टिवली इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चेंज इन आवर लीगल फ्रेटर्निटी एंड इन आवर सोसाइटी कलेक्टिवली। ओवर टू यू ओसामा। जी खतीजा एंड नबरीन वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। मैंने कहा हम जेंडर न्यूट्रल लें और पहले मैं अपनी फीमेल काउंटर पार्ट्स को मौका दूं। अच्छा, तो बात ये कर रहे थे हम कि उस तरह के लॉज बनने चाहिए। पिछले कोई 14-15 सालों में अगर हम देख लें, आपका सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस एक्ट आया 2010 का, उसके बाद जो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट आया जिसके अंडर जीबीवी कोर्ट्स बने, और क्या नाम है अपना डिफरेंट शेल्टर होम्स भी बने, एक मुल्तान में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स, वॉक सेंटर्स जिसे आप कहते हैं, तो वो बने। तो लॉज आर देयर और आगे भी लॉज आ रहे हैं। जैसे अभी ऑर्डिनेंस आ रहा है आपका रेप को कैटर करने के लिए, फिर आपका ज़ैनब अलर्ट बिल आया, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए सिर्फ था। उसके अलावा और भी लॉज काफी लूप होल्स में, लेकिन फिर येट अगेन लॉज का मसला नहीं है। आई थिंक लॉज की इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी हैव टू फेस, क्योंकि लॉज तो आ जाते हैं। अभी हम ट्रांसजेंडर एक्ट की बात करें 2018 की, 2 साल हो गए उस लॉ को आए हुए। आप मुझे एक भी उसकी प्रोविजन बता दें। निशा इज हियर विद अस आई थिंक। वो कहता है कि आपको हर तरह की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट कोटा है, उसमें आपका एजुकेशन सर्विसेज है, आपको हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी, आपको पता नहीं कौन कौन से राइट्स दे दिए गए, बट ऑल ऑन पेपर। मतलब ये हम सारा कुछ जो है कागजों में रख के उसे छोड़ देते हैं, और जो उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना होता है, जिन एजेंसीज ने उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, उन्हें भी पता नहीं होता कि भाई ये क्या लॉ है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आया आपका 2018 का, और JJSA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जिन्होंने कोई छोटा मोटा या कोई हीनस क्राइम भी कर दिया है उनको डील करता है। अब उसको 2 साल हो गए उस एक्ट को आए हुए, और वो एक्ट क्या स्पेसिफिकली कहता है? एक्ट कहता है कि आपके स्पेशल कोर्ट्स हों, सेपरेट कोर्ट्स हों, ठीक है। और उनको बेसिकली उसका मोटिव ये था कि जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम उम्र, उन्होंने अगर कोई जुर्म कर दिया है तो उनको आप आम अदालतों में जो आपकी सेशंस कोर्ट है उनमें ना लेके जाएं और उनसे अलग लेके जाएं। अब यहाँ पे हमने बल्कि रिट पिटिशन भी हमारी पेंडिंग है, उसमें आई एम द काउंसिल इन दैट पिटिशन, हाई कोर्ट में अभी चल रही है उसकी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने वेरी कन्वीनियंटली जो ऑलरेडी सारे कोर्ट्स बने हुए हैं आपके जितने सेशंस, उन सबको जी एक नोटिफिकेशन के जरिए डेजिग्नेट कर दिया कि जी ये जुवेनाइल कोर्ट्स। अब व्हाट्स द पॉइंट? मतलब आप कार्रवाई डाल रहे हैं, कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, मतलब यू फेल टू इम्प्लीमेंट द एक्ट इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। उसके अलावा वो एक्ट कहता है कि जो बच्चे जुर्म करते हैं वो 18 साल से कम उम्र, उनको अपने पुलिस स्टेशन में बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनके रेप के चांसेस होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे बच्चों का इसलिए रेप किया गया कि पुलिस कस्टडी में उनका रेप हुआ, ठीक है। तो इस वजह से उनके लिए सेपरेट ऑब्जर्वेशन होम्स हो। अब ये इतना आसान काम है कि आपने ऑब्जर्व उस एक्ट में ये भी बताया गया कि अगर आपके पास अभी नहीं है ऑब्जर्वेशन होम्स, ठीक है, तो आप एक एक्रेडिटिंग अथॉरिटी बनाएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो या कोई होम डिपार्टमेंट हो, जो एनजीओ जिनके ऑलरेडी सेंटर्स हैं, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्राइवेट एनजीओ ने बनाए हुए हैं, वो जो है उनको आप डेजिग्नेट कर दें। वो तक अभी 2 सालों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, तब तक हम आगे नहीं बात लेके चल सकते। स्पेशल कोर्ट्स का जैसे जिक्र कर रहे थे, स्पेशल कोर्ट्स बन तो जाते हैं, एंड अमरीन इज अ लिटिगेटर एज वेल, शी नोज कि खतीजा को भी आइडिया होगा कि स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो हर एक्ट में लिखे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स होंगे, लेकिन कितने असल में स्पेशल कोर्ट्स हैं ऑन ग्राउंड, ये बताए ना। और कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब अभी बल्कि एक जबरदस्त चलें, कोई अच्छी पॉजिटिव बात भी कर लेनी चाहिए कि अभी कमर्शियल केसेस के लिए उन्होंने कमर्शियल कोर्ट्स बनाए हैं, कमर्शियल जजेस पूरे पंजाब में डेजिग्नेट किए, और उनको प्रॉपर ट्रेन किया गया, उनको पूरा एक इवेंट हुआ, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको बताया गया, उनको एम्पावर किया गया। जब तक आप उन लोगों को जिन्होंने आगे फैसले करने उनको एम्पावर नहीं करेंगे, और उन्हें अपनी नौकरी का ही खतरा रहेगा कि अगर हम कुछ कर देंगे, हमारे साथ ये वकील कर देंगे, हमारे साथ वो कर देंगे, तो
क्या उन्होंने क्या चेंज लेके आएंगे वो। तो आप देख लो कमर्शियल कोर्ट्स बने हुए मेरे ख्याल से 2 महीने हुए होंगे, और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ केसेस इन 2 महीनों में सिर्फ उन कमर्शियल केसेस उन कोर्ट्स ने किए। ठीक है, तो जब तक आई थिंक जहाँ पे आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एम्पावर करना है, पुलिस को एम्पावर करना है, उनकी ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। अब हमारी प्रोविजन है जो कि ज्यादा लोगों को नहीं पता होगी कि हम बेल के लिए हमेशा जाते हैं कोर्ट में। पुलिस के पास जो एसएचओ होता है उसके पास खुद ये पावर होती है कि कुछ ऑफेंसेस में वो खुद बेल दे दे। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि कुछ ऑफेंसेस में जब वो खुद बेल दे देगा तो उससे फायदा ये कोर्ट्स का जो बर्डन है, जो हर चीज में हम कोर्ट में भाग जाते हैं जमानत लेने के लिए, वो कम होगा और लोगों को भी जो है कम ख्वारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक इसी तरह एक पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं सर हम कैसे दें, मैंने एक बंदे को दे दी तो मुझ पे आईजी तक इंक्वायरी लग गई कि जी आपने क्यों दी है। तो मुझे बताएं कि हमारे साथ वाले क्यों ये ऐसा कोई काम करें जिससे बेहतरी आए, जब बाद में उसी काम के लिए हमें आंसरेबल होना पड़ेगा। तो आई थिंक पहली बात 3 यहाँ पे चीजें आ गई। पहली बात इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी कि आपने जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उन्हें एम्पावर करना है और उन्हें ट्रेन करना है। तब तक मेरे ख्याल से लॉज जितने मर्जी आप बना लें, बहुत खूबसूरत किस्म के आप लॉज बना लें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का पूरा आप यहाँ पे छाप दें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। Very well said. I would love to hear Ms. Nisha Rao's stance, but unfortunately she had to leave. I'll hand over the floor to Ghazal, who will raise some questions from the audience. Thank you once again for the panelists for pertinently answering all our questions. Now we will take questions from the audience. Yes. Yes, thank you very much for such a healthy discussion. We have a lot of interesting questions. So the first one I'll be taking is from Amna Hussain. She's asking, don't you think part of the problem lies in a lack of consensus on what exactly the problem is? What accounts for gender, racial, and ethnic inequalities in law firms? Who is responsible for addressing them? Which proposed solution would be worth the cost? अच्छा, ये बहुत लंबा सवाल है। किसने पूछा ये सवाल? Amna Hussain, she's a law student from Canada. अच्छा, आमना हुसैन। आमना, बात ये कि ये क्वेश्चन आंसर करते करते मेरे ख्याल से घंटा लग सकता है, एंड आई डोंट थिंक वी हैव दैट मच टाइम। लेकिन बात ये कि कंसेंसस वाली जो आपने बात की, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कंसेंसस होना, और स्पेशली फीमेल्स में जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब मर्दों को तो कोई शौक नहीं है, ठीक है, वो क्यों करेंगे, वो तो मतलब उन्होंने बैरियर्स एक के बाद दूसरा बनाना है। ठीक है, ये अपनी जो हमारी फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो इस प्रोफेशन का हिस्सा हैं, जो चाहती हैं चेंज आए, उनको अपने बीच में कंसेंसस डेवलप करने की बहुत जरूरत है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है, और वो ऑर्गेनाइज सिर्फ ये व्हाट्सएप ग्रुप्स की हद तक और फेसबुक की हद तक नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करें। मतलब फिर मैं बीबी आसमा की एग्जांपल दूंगा कि वो अकेली अभी, मतलब उनकी फौतगी के बाद तक आसमा जहांगीर ग्रुप इज स्टिल देयर। ठीक है, तो आप अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, और स्पेशली इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी जरूरत है। अब जैसे कल इलेक्शंस हुए थे, लेट्स सपोज, तो उस पे अगर आप लोगों के 6-7 सारी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, खवातीन, वो सारी इकट्ठी होके अपने 6-7 कैंडिडेट्स देती जी कि ये हमारी खवातीन है और ये हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं जिनको हम वोट डालेंगे, और सारे वोट डालने आते हैं, मैं देखता कि आपको कौन इस सिस्टम का हिस्सा बनने से रोक सकता था। हर कोई आपके पास आता जी के आप, मतलब व्हेन यू आर स्टेक होल्डर, व्हेन मतलब यू आर पार्ट ऑफ दैट गेम, तभी लोग आपके पास आएंगे और तभी आप उसको चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो कंसेंसस, और ये क्यों नहीं होता, क्योंकि कंसेंसस नहीं है, एक कोई और बात कर रहा है, दूसरा कोई और बात कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत पेटी इश्यूज हैं जिसपे आई थिंक डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, ग्रेटर पिक्चर में ये कुछ भी नहीं है जहां पे डिफरेंसेस आते हैं। तो आई थिंक कंसेंसस इवॉल्व करना, ये मुझे आपकी बहुत बड़ी जबरदस्त लगी कि बहुत जरूरी है खवातीन के बीच में, खवातीन वकला के बीच में, और जब तक इस तरह का कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से असल चेंज आती हुई में ज्यादा टाइम लग जाएगा। आएगी जरूर, ये मैं नहीं कहता कि नहीं आएगी, आएगी जरूर। जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है, चेंज जरूर आएगी। लेकिन जो चेंज आनी है अगले 20 सालों में, वो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके अगले 5-10 सालों में ला सकते हैं आसानी से। Thank you very much for the answer. I would take another question,
which is from Arunava Banerjee. He's joining us from India. He's a law student as well. So he has asked that recently, while applying for internships in firms in our country, I came across a gender-inclusive approach in their selection process, where some firms ask for a psychometric test-based questionnaire to understand how gender fluid a person is and also how inclusive interns are. Can we have such a curriculum in law schools and other firms also? So what did the test have? Could you just repeat what kind of test was it? Yeah, so it was basically a psychometric test-based question to understand how gender fluid a person is. So the person that they're hiring as an intern, how gender fluid he or she is. You can have music at the back, but yes, that is a good thing to do, and that is something that we should appreciate that it does, if it's happened. But then again, I think we as a society, our minds are going to change when we're going to see the change. The change is actually, like Osama has time and again, pointed out, and I agree with him to an extent, that we have to get out and do things in order to ensure that we make our own space. So if we don't do that, then it just defeats the purpose. So yes, I think it's a good thing that it happens, and I think it should happen. However, if you see, the bigger problem here is actually women not being able to go to courts, or women not being able to take part as actively as they should, mainly because of this hindrance that's created. And then one thing that I need to again that I would like to highlight is that to start thinking that it's because of the men that women are unable to go to courts is also incorrect. Men have not taken your spaces, and they haven't taken your opportunities. You need to create your own space, and you need to make your own opportunities. So ye jo ek hota na, men versus women, I think especially in a profession, that is something that I'm against as well, because your own place and your own position is created by God, by Allah, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. आपके पास अगर 10 केसेस आने हैं आपके साल में या जिंदगी में, आपके पास 10 ही केसेस आएंगे. अगर आपके पास 1000 आएंगे या 100 आएंगे एक साल में आपके, सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये चीज हमें we have to change that. And litigation is not easy. Litigation is, I'm just adding one point to this. It's not an easy work. It's, I think working 9 to 5 in an office is much easier than actually litigation, than actually doing litigation. And being a mother of 3 children, I think that I know how difficult it is, and it is going to be for women to actually do this. So come with all preparations, and come with all kind of be ready for everything. Or if you start actually getting into the system, it is very easy. It's not something that is undoable. It's not something ke pata nahi aapne bada hi koi mushkil cheez hai. It should be easy once you get into the system. And that's all I'll say to that. Sorry, I just drifted away from the question. Thank you very much for adding such valuable points. I wish we could take all the questions, but we have our respected speakers for the next session, which is on environmental law. So if anybody wants to, our very esteemed speakers, Mr. Ali Ibrahim, Sir Rafi Alam, Ma'am Sarah Hayat, stay tuned. And thank you very much, everybody, for joining us today. Thank you very much, Barrister Amreen Qureshi. Thank you very much, Barrister Khatija. Thank you very much, Mr. Osama Malik. And I'll thank Ma'am Nisha Rao separately because she has left the meeting. So it was a great session. Thank you very much. Thank you. Thank you.